So now I am discussing in previous lecture what we discussed. We discussed about some general mechanism of electrophilic substitution reaction of benzene, as well as the points which favors that electrophilic substitution reaction takes place by two-step mechanism, and energy profile, in which we discussed two energy profile. One is from nitrobenzene and second one is from सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन. ठीक है, अब देखो, दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज टॉल्यूइन एंड दिस इज नाइट्रो. ठीक, आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा कि क्या होता है व्हेन वी इंट्रोड्यूस्ड एनी ग्रुप इन बेंजीन रिंग, तो द ग्रुप आइदर इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ रिंग और डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ रिंग. The introduced group either increase the reactivity of ring means towards electrophilic substitution reaction, or it can decrease the reactivity of ring towards electrophilic substitution reaction. For example, okay, if CS3 group is introduced in benzene ring for Friedel-Crafts reaction or other electrophilic substitution reaction, this is more reactive as compared to benzene ring. So what does it mean? It means that CS3 group introduced in benzene ring, it activates the benzene ring towards electrophilic substitution reaction. On the other hand, when NO2 group is introduced in the benzene ring, when we will discuss the reactions of nitrobenzene, it will decrease, nitro group decreases the reactivity of benzene ring towards electrophilic substitution reaction. Means the reaction of nitrobenzene with any electrophilic substitution reaction, it is much more slower as compared to benzene. So what does it mean? Nitro group decreases the rate of reaction and CS3 group introduce the rate of reaction. The group which activate the reactivity of benzene ring towards electrophilic substitution reaction are known as activating group, and the group which decreases the reactivity of aromatic ring towards electrophilic substitution reaction are known as deactivating group. So it means NO2 is deactivating group and CS3 is activating group. ठीक है, we also know that some group already present in the benzene ring to direct the incoming group towards either ortho or parasite or in the meta site. For example, when we react toluene, in which CS3 group is present in the benzene ring, to anything in, for the chlorination, okay, for the chlorination of this compound, it gives either orthochlorotoluene or parachlorotoluene. But in the case of nitrobenzene on electrophilic substitution reaction, it gives metachloronitrobenzene. ओके, तो इट मीन्स जो नाइट्रो ग्रुप है उसने आने और इनकमिंग ग्रुप को कहाँ पर अटैच कराया? मेटा पर. एंड जो CS3 ग्रुप है उसने इनकमिंग ग्रुप को कहाँ पर अटैच कराया? आइदर ऑर्थो पर और पैरा पर. तो दिस ग्रुप इज नोन एज, कौन सा ग्रुप जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एंड NO2 इज नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि वो आने वाले ग्रुप को कहाँ के लिए डायरेक्ट कर रहा है? वो आने वाले ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है आप मेटा पे जाए, और CS3 इंडिकेट कर रहा है कि आप कहाँ पर जाएं, आपका ऑर्थो और पैरा पर जाएं. ठीक है, अब ये कैसे होता है? देखो, वी ऑलरेडी रेड द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो उसका जो स्टेप था, इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट हुआ, ठीक हुआ. इन सेकेंड स्टेप जब क्या होता है आपका, देखो, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, तो दिस इज स्लो स्टेप एंड इट फॉर्म्स दिस इंटरमीडिएट. बनता है ना एरिनियम, क्या बनता था? आइन बन रहा था, या कार्बोनियम आइन यहाँ पर कुछ जो बन रहा था आपका. ठीक, तो एरिनियम आइन बनता है. अब देखो, जो एरिनियम आइन है इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1 2 3. बना लोगे ना, ये 1 से 3 पे पहुँच जाएगा, बॉन्ड पीछे. फिर 1 2 3, ये 1 से 3 पे पहुँच जाएगा, बॉन्ड पीछे. तो दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंटरमीडिएट एंड दिस इज स्लो स्टेप. तो इस पे डिपेंड करेगा, इनके फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, क्या डिपेंड करेगा कि रिएक्शन अच्छी होगी या नहीं होगी. माना ये अनस्टेबल होगा तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, रिएक्शन स्लो होगी, बनाएगी ही नहीं. अनस्टेबिलिटी की ओर कोई नहीं जाता है, समझ में आ रहा?
तो यदि क्या होगा, जो ये बने हैं आपका इंटरमीडिएट यहाँ पर को बने हैं, यदि ये अनस्टेबल होंगे तो रिएक्शन स्लो होगी, और यदि ये स्टेबल होंगे तो रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी। तो स्लो होने का मतलब क्या हुआ आपका, डीएक्टिवेट हो जाना, और फास्ट होने का मतलब क्या हुआ आपका, एक्टिवेट हो जाना। ठीक है, अब हम पढ़ना है थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी। ये तो समझ में आ ही गया होगा, कुछ नहीं है, बेंजीन है, ये है, ये है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों है, एक्सपेरिमेंट किया, देखा, तो इसका पता चला CH3 लगने से रिएक्शन तेजी से हो रही, फास्ट हो गई है। ठीक, तो ये क्या लगा, एक्टिवेट कर दिया, और NO2 लगने पर 4 दिन में रिएक्शन, जो रिएक्शन 2 घंटे की थी 4 दिन में खत्म हो रही। इट मीन्स क्या हुआ, NO2 ने क्या कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन कम कर दिया। ठीक है, रिएक्शन को स्लो कर दिया, तो NO2 इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और हमें ये भी पता है कि जब हमने रिएक्शन किया तो इनकमिंग ग्रुप या तो ऑर्थो में आया या पैरा में आया, तो CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और NO2 की रिएक्शन की तो यहाँ पर आया ही नहीं, इनमें अटैच नहीं हुआ। ऑर्थो पैरा तो जानते ही हो ना, ऑर्थो कौन सा होता है आपका, जहाँ पर ग्रुप है 1,2 इज नोन एज ऑर्थो, 1,3 इज नोन एज मेटा, एंड 1,4 इज नोन एज पैरा। ठीक, तो यहाँ पर आएगा तो 1,2 हो जाएगा ऑर्थो, यहाँ पर आएगा तो 1,3 हो जाएगा मेटा, और यहाँ पर पैरा। ठीक है, अब देखो क्या है, ये है आपके, ये बना रखा मैंने जो बनना था। ठीक है, तो ये क्या है आपका, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तीनों का हाइब्रिड फॉर्म एक साथ ही दिखा दिया। तो ऐसे दिखा सकते हैं कि ये H और Y मीन्स है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, तो जो रिजोनेटिंग फॉर्म्स हैं उनको कंबाइन फॉर्म में इस तरीके से, कल भी बात की थी हमने, डैश 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 करके प्लस दिखा देते हैं। ठीक, अब ऐसा दिखाई देगा। यदि इसमें मैथिल होता, जैसे हमने ऊपर बात की थी CH3, तो कैसा होता आपका, ये होता, और इसमें क्या होता, मैथिल हो जाता। और क्या होता यदि आपका नाइट्रो होता, तो तीनों में क्या जुड़ जाता है यहाँ पर को, क्या आपका नाइट्रो हो जाता है। ऐसा ही तो बनता ना, यदि आप बनाते, टॉल्वीन के केस में ये बनता, नाइट्रोबेंजीन के केस में ये बनता, और बेंजीन के केस में ये बनता। ठीक है, अब क्या होगा, देखो हमने क्या करा, ये बेंजीन है, इसमें कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दिख रहा ग्रुप कैसा अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसकी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन की, ये बना। ठीक है, तो क्या हुआ आपका, देखो ये जो रिंग है उसमें कैसा चार्ज है, प्लस, और ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो क्या भेज रहा है उसकी तरफ को, इलेक्ट्रॉन, किसकी तरफ को, रिंग की तरफ को। समझ में आ रहा, तो रिंग में कैसा चार्ज है, प्लस दिख ही रहा होगा आपको, रिंग में कैसा आपका प्लस, और जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो क्या करेगा, ये प्लस चार्ज को डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि प्लस है, उसकी तरफ माइनस जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कोई चीज़ में यदि चार्ज कम होता है तो इट मीन्स कैसा होगा, वो स्टेबल, क्या होगा, स्टेबल। तो जो ये इंटरमीडिएट बनेगा ये कैसा होगा आपका, स्टेबल होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो ऑन द अदर हैंड क्या होगा आपका, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग, ऑन द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इट कन्वर्टेड इनटू दिस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, इन दिस केस क्या होगा, जब G ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो इट क्या करेगा, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, तो अपनी ओर खींचेगा। तो इसमें कैसा चार्ज आएगा G में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो रहे, तो इसमें कैसा आएगा, नेगेटिव। लेकिन रिंग में कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। समझ में आ रहा, तो रिंग पहले से ही पॉजिटिव थी, और उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने और पॉजिटिव कर दिया, तो इट मीन्स जो रिंग है उसमें कैसा चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने देगा, नहीं करने देगा, तो ये क्या करेगा, डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो यदि सीधे साधे कहा जाए कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर deactivating group, and it deactivates the benzene ring towards electrophilic substitution reaction. क्लियर, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, इसने दिया तो कुछ नहीं हुआ, ये पहले से प्लस था, इसने इलेक्ट्रॉन मूव किया तो प्लस कम हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। इसमें पहले से ये प्लस था, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो उसमें और प्लस बढ़ गया, ठीक है। तो ये प्लस पहले से था और प्लस हो गया, तो ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये अनस्टेबल हो गया, तो ये रिएक्शन आगे को कम करेगा तो डीएक्टिवेट कर देगा। तो कैसा ग्रुप डीएक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल NO, ये फॉर एग्जांपल कुछ लिखे हैं NH2OH OCH3 NHCO CH3 C6H5 CH3, दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो है, साइनाइड है, SO3H, कार्बोक्सिलिक एसिड CHO COR, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या कर देते हैं, आपके एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक्सपेरिमेंटल डेटा कंपेयर करें तो दिस कंपाउंड, विच कंपाउंड, इन दिस कंपाउंड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इज हेयर, तो इट इज 16 टाइम मोर रिएक्टिव टू फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एज कंपेयर टू बेंजीन, ठीक। तो जो ये ग्रुप है ये भी कैसा है आपका, हाईली
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। समझ में आ रहा? तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, आपका रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। 16 टाइम, एक्सपेरिमेंटल डेटा कहते हैं कि 16 टाइम इंक्रीज हो जाती है। अब देखो ये क्या है, आपका CH3 है, टॉल्वीन है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब इसमें हमने क्लोरीन लगा दिया, किस विड्रॉ करने वाला लगा दिया, तो कैसा हो गया ये वीकली डीएक्टिवेटिंग। 2 लगा दिए तो कैसा हो गया मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। और ये कैसा हो गया CCl3 स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अब ये खींचेंगे तो क्या कर लेंगे, ये जो पूरा ग्रुप होगा किसकी तरह काम करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, वो उसको जो बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है उसको अनस्टेबल कर देगा। अनस्टेबल करेगा तो रिएक्शन कम होगी। तो ये एक दूसरा डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। अभी हमने बात की थी कि CH3 होने पर जो फर्दर अटैक होता है वो कहाँ पर होता है, ऑर्थो और पैरा में होता है। और NO2 होने पर क्या होता है, मेटा। मीन्स सम ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड सम ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, अब इसकी कैसे थ्योरी पता चलती है, देखो फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ये बेंजीन रिंग में CH3 है। ठीक, तो सिंपल है, देखो ये बेंजीन रिंग है, मिस्टेक से हो गया था। देखो ये क्या है आपका बेंजीन रिंग और ये CH3। अब हम पहला बना रहे हैं पैरा पे अटैक होगा तो क्या होगा, फिर हम बनाते हैं मेटा पर अटैक होगा, फिर हम बना रहे हैं आपका ऑर्थो पर अटैक होगा। तो पैरा पर अटैक होने का मतलब हुआ अटैक होना है यहाँ पर वो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कब करेगा, जब यहाँ पर कैसा चार्ज होगा, किसी तरीके से नेगेटिव होगा, तभी तो ये इस तरफ जाएगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल में कैसा चार्ज है प्लस, तो उसमें अटैक कब करेगा, जब नेगेटिव। तो इट मीन्स बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, इस फैशन में होगा। तो इसमें कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड और ये कैसा हो गया, प्लस। दिख रहा, तो ये HE और ये। अब इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, 1 2 3 1 2 3। तो दिख रहा है 1 2 3, तो प्लस यहाँ पहुँच गया और बॉन्ड एक पीछे चला जाता है। तो यहाँ जहाँ था उसके एक पीछे, जहाँ से काउंटिंग शुरू की वहाँ पीछे चला जाता है, यहाँ आ गया। फिर करा आपने 1 2 3, तो प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर वो। ठीक है, अब ऐसे ही तुमने कहा किया मेटा पर। अब मेटा पर अटैक कब होगा, देखो मेटा पर यदि इसको ऐसे ही बनाते, ये है आपका यहाँ पर अटैक होना है, तो कैसे होगा, फिर ये ऐसे टूटेगा तभी तो होगा। तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पर कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये प्लस और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। फिर 1 2 3 प्लस यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड यहाँ पीछे चला गया। फिर 1 2 3 प्लस यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड पीछे चला जाएगा। दिख रहा है यहाँ पर पीछे आ गया। ठीक, तो मेटा पर अटैक। ऐसे ही पैरा पे ऑर्थो पे करोगे, तो ऑर्थो पे करने पर ये 3 स्ट्रक्चर बने हैं। ठीक है, तो ऑर्थो पर ऐसे होगा, ये था स्ट्रक्चर आपका CH3। तो यहाँ पर अटैक कैसे होगा बताओ, जब बॉन्ड ऐसे क्लीव होगा तो होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इस पर कौन जुड़ जाएगा आपका E पॉजिटिव। तो ये तो बॉन्ड बना लेंगे, ये प्लस। फिर क्या करना है, बस कुछ नहीं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 यहाँ आ गया, फिर 1 2 3 यहाँ पर आ गया, और बॉन्ड एक पीछे खिसकता रहता, तो ऑर्थो पर अटैक। ठीक है, तो यदि ओरिएंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें तीनों कंडीशन लेके चलनी होती है कि यदि ऑर्थो पर अटैक होगा तो क्या होगा, पैरा पर होगा तो क्या होगा, और मेटा पर क्या होगा। तो हमने तीनों के लिए क्या कर दिया, बीच का जो, क्योंकि हमारा उससे मतलब है, क्योंकि वो स्लो स्टेप है, उसी से हमें मतलब है कि वो बन रहा है या स्टेबल है या नहीं है। ठीक, अब देखो इन तीनों स्ट्रक्चर में देखो, एक स्ट्रक्चर ये देखो जिसमें क्या है, इस कार्बन में प्लस है और उसी में कौन सा ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक, ऐसे दूसरा स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर इस कार्बन में क्या है, प्लस, और इसी में कौन सा ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब बताओ ये प्लस है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इन तीनों स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पहले से प्लस था और CH3 ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो पहले से क्या था वो प्लस, और CH3 ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन, तो कैसा हो गया प्लस, नेट प्लस कैसा हो गया, कम। तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो ये कार्बन है जिसमें प्लस है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से अटैच है, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, किसका, प्लस का रिड्यूस हो जाएगा। तो इट मीन्स दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट इज स्टेबल। ठीक है, तो क्या करेगा, फेवर करेगा। ठीक है, लाइकवाइज व्हेन ऑर्थो अटैक, in the case of ortho attack we also see here that the carbon which contain a positive charge it directly attached with the electron donating group। तो electron donating group क्या करेगा, it pushes its electron towards the positive charge, तो जो इसका पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो अब लेकिन मेटा में देखो, जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उस कार्बन में प्लस कहीं नहीं आ रहा, आ रहा है इस कार्बन में प्लस, इसमें नहीं है, इस वाले स्ट्रक्चर में आ रहा है, रिजोनेटिंग में तो चेक करो, इसमें भी कार्बन में प्लस नहीं है,
और इस वाले कार्बन में भी प्लस नहीं है। तो इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं आ रहा जिसमें कि वो कार्बन को डायरेक्टली क्या कर रहा होगा कि उसके पॉजिटिव को रिड्यूस कर रहा। लेकिन ऑर्थो की यदि पैरा की बात कर रहे हैं तो इसमें तो नहीं आ रहा डायरेक्ट, लेकिन जो यहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ये 2 बना हुआ है जिसको कि मैंने नंबर 1 दिया है, इसमें क्या है आपका डायरेक्ट CH3 पॉजिटिव वाले कार्बन से अटैच है। तो ये स्टेबल है, काफ़ी स्टेबल है, तो ये फेवर करेगा रिएक्शन को और ये फेवर करेगा। तो इसमें कोई नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये रिएक्शन फेवर नहीं होगी। तो कौन सा अटैक फेवर होगा? पैरा और ऑर्थो। दैट्स वाई CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं NO2 की। तो ऐसे ही NO2 के भी बनेंगे, सिर्फ क्या अंतर होगा, जहाँ CH3 लिखा है वहाँ NO2 लिख देना। बनाने होंगे तो सबके बनेंगे। यहाँ पर को क्या लिखोगे? NO2, बस यहाँ पर NO2 बनने ऐसे ही हैं जैसे यहाँ पर को बने हैं। ठीक है, अब देखो NO2 के केस में क्या है, देखो यदि मैं ये स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ 1 की, तो वो बनेगा ये, मतलब जिसमें कि क्या है प्लस लिखना, यह है गया, यहाँ पर को प्लस था। ठीक, वो प्लस था और इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी ओर। किसने? NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो ये क्या करेगा अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो NO2 ग्रुप पुल्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रॉन यदि इसकी तरफ जाएंगे तो कार्बन में कैसा चार्ज आएगा? पहले से ही प्लस था और इलेक्ट्रॉन तो ले लिया किसने? NO2 ने। तो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ की ओर चले गए? NO2 की ओर। तो इसमें कैसा चार्ज हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो नेट पॉजिटिव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसे यदि इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें भी क्या होगा? सेम चीज़ है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अपनी ओर क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। तो जो नेट पॉजिटिव होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो स्ट्रक्चर्स होंगे किसके केस में? NO2 के केस में। वो कैसे होंगे फिर? आपके अनस्टेबल स्ट्रक्चर होंगे। तो इट मीन्स क्या होगा, यहाँ ये दो जहाँ बन रहे होंगे उसमें रिएक्शन नहीं होगी। मतलब कहाँ पर नहीं होगी? पैरा पर नहीं होगी और ऑर्थो पर नहीं होगी। तो कहाँ पर अटैक होगा फिर? आपका मेटा में अटैक। दैट्स वाई NO2 इज मेटा डायरेक्टिव। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा तो इन दोनों के पूरे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से बनाओ। पैरा के 3, मेटा के 3, ऑर्थो के 3। उसमें देखो कि क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो इसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है या अनस्टेबल बना रहा है, उसको चेक करो। ठीक है, तो तुम्हें यही दो स्ट्रक्चर ऐसे मिलेंगे जो क्या कर रहे होंगे, इसको फेवर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, जिस कार्बन में प्लस है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से अटैच है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से अटैच होने की वजह से क्या करते हैं, वो इस पॉजिटिव को इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक, डोनेटिंग के केस में तो डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में इंक्रीज कर रहे हैं। तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर हाईली अनफेवर्ड। ठीक, दैट्स वाई पैरा ऑर्थो अटैक नहीं होगा। ठीक, तो कौन सा अटैक होगा फिर? आपका मेटा अटैक होगा।